learn about the WTO. WTO, that is called the World Trade Organization. As the name suggests, it is an organization that deals with international trade. So today we will going to discuss about the WTO, World Trade Organization, and the GATT. WTO is a new form of GATT. So how trade started and how it converted from one route to another route, and from the GATT to WTO, and the various agreements related to the WTO. So now we will start with the history of multilateral trade. There is a two thing and a difference that is between the bilateral and multilateral. So bilateral means between the two country or two economy. Multilateral means where the many countries or many economy involved. So the multilateral trade is not a new thing. That means it is not new. That means it has established during the British time also. So the multilateral trade was also existed in the early days or in the British time period also. So it was from the Silk Route to GATT to the birth of WTO. Silk Road means the route which connects the western country to the eastern countries. It was a route where the trade take place from west to east, western countries to eastern countries. After the Silk Road, the new form and new organization was set up, that is called the GATT, General Agreement on Tariff and Trade. And after GATT, the GATT was reorganized and it gives the birth of WTO, that is World Trade Organization. So all these things, the multilateral trade is not a new thing. It existed in previous time in the Britishers time period also. But after a Second World War, or after the Second World War, the Silk Road exited and it gives organization, it gives a birth to an organization, that was GATT. And after a new reforms in 1990s, it gives a birth of the WTO. So the multilateral trade plays an important role in the international trade, because the bilateral trade is between the two countries, but nowadays in the phase of development, every country believes in multilateral trade, not in the bilateral trade. Bilateral trade also takes place, but multilateral trade is playing a more important role in today's economic development. So after Second World War, the GATT was established under the Treaty of 23 countries in 1947, but GATT started functioning in 1948. So after Second World War, the General Agreement on Tariff and Trade was established by a multilateral treaty by multilateral countries, and at that time there was 23 countries only, कि सिर्फ 23 countries ने मिलके ये GATT जो है वो establish किया था. 1947 में establish हो गया था, but it started functioning in 1948 only. So multilateral trade is
not new thing, it established during the Britishers time period, and ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड में ये बहुत फेमस था कि सिल्क रूट से, सिल्क रोड जहाँ से वेस्ट की जो कंट्रीज़ थी वो ईस्टर्न कंट्रीज से कैसे कनेक्ट हुई थी, बायलैटरल ट्रेड को कैसे मल्टीलैटरल ट्रेड में कन्वर्ट किया जाए ताकि आपस में जो जितने भी वर्ल्ड में मैक्सिमम कंट्रीज़ जो है वो एक साथ इन्वॉल्व हो एक जगह पे ट्रेड करने में. सो नाउ वी आर कमिंग टू the GATT years. GATT, as I earlier told, it was established in the year 1947 but started functioning in the 1948. So GATT years in 1948 to 1994, because in 1944 the WTO has been established. So the GATT provides the rules for the world trade and presided over the period of international trade. ही मेन जो GATT का काम था that was to create the rules and regulations for the world trade, for the international trade. जितने भी कंट्रीज़ उसके अंडर आती थी उन सभी कंट्रीज़ के लिए एक जनरल रूल्स था वो फॉलो. जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड मीन्स ऑन इंटरनेशनल ट्रेड को लेके जो रूल्स बनाए जाते थे वो जनरल होते थे सभी कंट्री के लिए. सो द GATT established and it functioned for 47 years. So there was a 7 rounds, totally it was 8 round, 7 rounds of negotiation की जो GATT के ईयर्स में जो negotiations हुए थे वो 7 rounds में full negotiations हुए थे. But in the final round, in the 8th round, the GATT converted into the WTO, and that was during the ministerial meeting at Marrakech, Morocco, and it was also called the Marrakech Agreement. At that time there was 123 countries involved in the Uruguay round. So 15th April 1994 the GATT was converted into the WTO. So it was the 8th round. कई बार होता है कि क्वेश्चन पूछा जाता है in which round the GATT converted into the WTO, in which round of the GATT WTO came into existence. So it was the 8th round and that was called the Uruguay round, and in that round the GATT was demolished and WTO comes in. So in Uruguay round there was 60 agreements जहाँ पे एग्रीमेंट्स को नेगोशिएट नहीं किया जा रहा था, जहाँ पे कन्फ्लिक्ट्स आ गए थे नेगोशिएशंस को लेके, एग्रीमेंट्स को लेके. तो लॉन्ग लिस्ट ऑफ 60 एग्रीमेंट्स थे और उन 60 एग्रीमेंट्स को 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया था. द फर्स्ट वाज द एग्रीमेंट इस्टेब्लिशिंग द WTO, कि कौन से ऐसे एग्रीमेंट्स हैं जिससे कि WTO इस्टेब्लिश होगा. GATT के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है दैट कम्स अंडर द WTO. Second part was the multilateral agreement of trade in goods, the agreement that is related to trade in goods only. Third was agreement on trade in services. Then fourth was the trade related aspects of intellectual property rights, that was also called the TRIPS, related to intellectual property rights. We will discuss later all these agreements in WTO. Dispute settlement body was established to settle the disputes between the member countries related to international trade. And last part was the reviews of the government trade policies. जो भी गवर्नमेंट अपनी ट्रेड पॉलिसी, इंटरनेशनल ट्रेड, फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज बनाती है, that should be reviewed by the WTO. So these all 60 agreements was converted into these 6 part.
So the GATT, I have earlier told that there was 8 rounds under the GATT. First round was in 1947. That was in Geneva. Geneva is the headquarter of WTO. So the area that was covered under the GATT agreement, that was related to tariff. When the GATT was established, there was only 23 countries. So जो भी एरिया कवर किए गए एग्रीमेंट से रिलेटेड वो था हमारा टैरिफ से रिलेटेड. टैरिफ मींस द इम्पोर्ट ड्यूटी, जो हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे जो ड्यूटी लगाते हैं, टैक्स लगाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द टैरिफ. Then second round was in 1949. That was in NSC, and that was also related to tariff, where only 13 countries were involved in this round. Then next conference was in 1951 in Torquay, England, and that was also related to tariff. And then the member countries increased to 38. Fourth round was in Geneva, and that was also related to tariff, and there was 26 countries involved. Then 1960 to 61, Geneva, that was called the Dillon round. And it was related to tariff, and 26 countries were involved. It means that round concluded in 1 year, 60 to 61. All the agreements, all the negotiations concluded in 1 year. It takes time of 1 year to negotiate between the countries, among the countries. 1964 to 67 was the next round, that was 6th round, and 6th round was also in Geneva, but it was called the Kennedy round. Kennedy was the president of United States. So it was related to tariff and anti-dumping measures. जो भी डंपिंग करती है कंट्रीज एक दूसरे की मार्केट को कैप्चर करने के लिए, जो मोनोपोली में पड़ते हैं, डंपिंग, इंटरनेशनल मार्केट में डंपिंग यूज़ होता है. डंपिंग, द टर्म means when the firm is selling the goods at higher price in the domestic market but a lower price in the foreign market. The firm sells at lower price in foreign market so that they can capture the market of foreign country. दूसरी कंट्री के मार्केट को कैप्चर करने के लिए वहाँ पे कम प्राइस पे सेल किया जाता है और अपनी कंट्री में वही गुड्स मैक्स हाईएस्ट प्राइस पे सेल किया जाता है. दैट इज़ कॉल्ड द डंपिंग, कि डंप करना. सो नेक्स्ट राउंड was Tokyo round, and that was related to tariff as well as non-tariff measures, and 102 countries were involved. And last round, the 8th round, was in Geneva. That was called the Uruguay round. And in this round, the WTO came into effect. The GATT was converted into WTO. It was related to many dimensions. Initially, it was related to tariff or non-tariff measures only. But in Uruguay round, many aspects come into effect, like tariff and non-tariff was earlier there, but the rules related to service, intellectual property rights, the dispute settlement body, textiles, the agreement or tariff related to the textile industry also, the agreement on agriculture sector also, and the most important, the creation of WTO. So Uruguay round is the last round which gives birth to the WTO, the World Trade Organization. So it was all about the GATT, the history of the GATT, General Agreement on Tariff and Trade. So now we are going to discuss about the World Trade Organization. What is World Trade Organization and
what functions they perform, and at what principles they work, and what are the agreements of WTO. So, first we are going to learn who we are. It means what is WTO. So, if we call in a one sentence, then WTO is an organization for trade opening. GATT और WTO में जो difference है, that means GATT was not a permanent organization, but WTO is a permanent organization. GATT कभी भी dissolve हो सकती, it was not a permanent body, but WTO is a permanent body dealing with the international trade. So WTO, in simple word, it is an organization for trade opening. It is a forum where the government, it is a place, it is a platform where government can negotiate the trade agreements. जहाँ पे गवर्नमेंट अपने ट्रेड एग्रीमेंट्स को नेगोशिएट कर सकती है, वो एक प्लेटफॉर्म है WTO. So it was created in 1994, but it started functioning in 1st January 1995, from 1st January 1995, and it was marked as the biggest reform of international trade since the end of Second World War, because after Second World War, GATT was established, but after when GATT was abolished and WTO came into effect, it was regarded as the biggest reform in international trade. So, in a simple word, if we talk about WTO, WTO is an organization that deals with the international trade, and that trade is a multilateral trade, and it gives a platform to the government. It gives a forum for the government to negotiate the trade agreements. The main difference between WTO and GATT was mainly deal with the trade in goods only. That means the GATT, जितने भी ट्रेड रिलेटेड एग्रीमेंट्स होते थे GATT में, वो सिर्फ ट्रेड किस में, गुड्स में. But WTO covers a lot of things that apart from goods. Goods also included in the WTO, but apart from goods, there is services, there is intellectual property rights, there is a dispute settlement body, there is also general reviews of the international trade policy. So there are many aspects that was not in GATT time period. So the GATT mainly dealt with the trade in goods only, but WTO deals with trade in goods as well as in services, as well as in intellectual property right, as well as settlement of dispute. So the WTO comes from the negotiations of the Uruguay round. Initially, the WTO and all the agreement of WTO was based on the Uruguay round, कि जो भी Uruguay round में जो agreements हुए थे, 60 agreements थे जो 6 पार्ट में डिवाइड कर दिए गए थे, उस पे WTO के फंक्शनिंग चल रही थी. बट आफ्टर 2001 the Doha round of WTO, new negotiations of WTO comes under the Doha Development Agenda. कि जो पहले उरुग्वे राउंड डंकल प्रपोजल था GATT में, डंकल किसी पर्सन का नाम है जो उसमें उनके जो चेयरपर्सन थे उनका नाम था, तो उन्होंने जो एग्रीमेंट्स जितने भी प्रपोजल दिए उसको एक नाम दे दिया गया डंकल प्रपोजल. तो डंकल प्रपोजल से ही जितने एग्रीमेंट्स, वो 6 एग्रीमेंट्स थे, वो सारे उसी से आए थे. बट सिंस
1995 to 2000 जो WTO था वो उरुग्वे राउंड के बेस पे चल रहा था, वो 6 एग्रीमेंट पे. बट आफ्टर द दोहा राउंड इन 2001, now the WTO is currently working under the new negotiations that is called the Doha Development Agenda. The Doha Development Agenda launched in 2001. So this is all about the meaning and definition, who we are, what is WTO. Now, the second part of WTO is what we do, what functions the WTO perform. क्या करती है एक्चुअली में WTO, कैसे काम करती है. So the WTO is run by its member countries. जितने भी मेंबर वर्ल्ड में जितने भी मेंबर कंट्रीज है उससे WTO चलती है. ऑल मेजर डिसीजन are made by the membership as a whole. That means not a single country can take a decision. All the decisions, all the negotiations has been taken by the member as a whole, not by single country, not by not like a dictatorship. So either by ministers or their ambassador, कि जो भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं मेंबर कंट्री के, उनके थ्रू ही नेगोशिएशंस होती है. The second thing, it could not function without its secretariat. कि उसकी जितनी भी एक्टिविटीज़ है WTO की, विदाउट सेक्रेटेरिएट कोई भी फंक्शनिंग नहीं हो सकती. जितने भी मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव के बगैर कोई भी फंक्शनिंग नहीं हो सकती सेक्रेटेरिएट के बगैर. सो द सेक्रेटेरिएट एम्प्लॉयज़ ओवर 600 स्टाफ and many experts from the different fields like lawyers, economists, statisticians is there, communication experts, and from the other areas also. So these all experts are also included, and over 600 staff is there in the WTO under the secretariat, and all these members collectively makes the decision, and that decisions becomes the agreement when all members agree on these decisions. So the first work that WTO do, so what functions the WTO is performing, कौन कौन से ऐसे फंक्शन है, क्या काम करती है एक्चुअली में WTO. फर्स्ट फंक्शन ऑफ WTO इज ट्रेड नेगोशिएशन, इंटरनेशनल ट्रेड नेगोशिएट करना. WTO negotiate in the trade that is related to goods, services and intellectual property rights. The trade negotiation includes lowers the custom tariff, कि tariff को reduce करना, other trade barriers like quota, and to open and keep open service markets, कि जितने भी countries हैं उनके tariff कम हो, other trade barriers कम हो, कोटा जो लगाती है import कोटा वो कम हो, प्लस सर्विसेज मार्केट को अदर पूरे वर्ल्ड में मल्टीलैटरल ट्रेड के थ्रू ओपन करें. दे सेट ऑल्सो अ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट. देयर इज अंडर WTO देयर इज सेटलमेंट डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी दैट सेटल्स द डिस्प्यूट्स अमंग द मेंबर नेशन. की अगर दो मेंबर में अगर सपोज कि इंडिया और US का ट्रेड रिलेटेड डिस्प्यूट चल रहा है तो दे कैन गो टू WTO and WTO can settle their disputes according to the rules and regulations that is defined in the WTO.
So there is a dispute settlement body also, and the trade negotiations is not static. It means it can be renegotiated from time to time. That means if there is one trade related trade in services or trade in goods, that doesn't mean it will cover only trade in goods and services. If the time is needed one more thing, then the WTO can add these things also, कि अगर कुछ नया ज़रूरत है पैकेज की, कुछ नया एग्रीमेंट की ज़रूरत है, जैसे टेक्सटाइल ऐड हुआ था बाद में, तो ये सारी चीज़ें WTO चेंज कर सकती है. इट्स एग्रीमेंट इज़ नॉट स्टैटिक, इट कैन बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू टाइम. So now, as I earlier told, that WTO is now the WTO is negotiated under the Doha Development Agenda. कि जो दोहा कॉन्फ्रेंस हुआ था, दोहा राउंड हुआ था कतार में 2001 में, उसके बेस पे अब नेगोशिएशन होते हैं. पहले उरुग्वे राउंड के बेस पे होता था और अब दोहा राउंड के बेस पे होता है. So the first function of WTO is trade negotiation, trade negotiate करना. Second function is the implementation and monitoring. WTO agreement requires government to make their trade policy transparent by notifying the WTO. It means all the member countries, all the government of member countries should make their trade policy transparent, and it should notify the WTO about their foreign trade policy. That means if India is making a new foreign trade policy in 2020, then India has to inform the WTO about their policies. So WTO works as a monitoring system also, and all the agreement that was made by WTO, whether it is properly implemented or not, is also monitored. कि जो भी implementation बनाए गए, जो भी एग्रीमेंट्स बनाए गए हैं, क्या वो एक्चुअली में इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, उसको भी मॉनिटर करती है. सिर्फ दूसरी कंट्री, मेंबर कंट्री के फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को मॉनिटर नहीं करती है. जो WTO के खुद के एग्रीमेंट है, वेदर इट इज़ इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली और वेदर दीज agreements are being followed by the member countries or not, that is also monitored by the WTO. All the WTO members must undergo periodic scrutiny of their trade policy. Periodic scrutiny and review भी होती है उनकी जो पॉलिसी बनाई जाती है, जितनी भी मेंबर कंट्री है उनकी जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी होती है उसकी स्क्रूटनी पीरियडिकली WTO के सेक्रेटेरिएट मेंबर्स जो हैं वो उनकी कंट्रीज़ में आके करते हैं, देन रिपोर्ट्स बनाते हैं. सो सेकेंड फंक्शन इज़ इम्प्लीमेंटेशन of their agreements and monitoring the implementation. Third function of WTO is the dispute settlement. The WTO works to settle the disputes of the member countries. If there is a dispute among the members related to trade, so they can go to WTO and they can discuss their disputes, and WTO provide a platform to solve their disputes. So countries bring their disputes to the WTO if they think their rights under the agreements are being infringed. कि अगर उन्हें लगता है कि हमारे जो राइट्स हैं, हमारी जो पॉलिसी है वो हार्मफुल हो रही है किसी और कंट्री की वजह से, या कोई कंट्री हमारे अगेंस्ट में कुछ ट्रेड रिलेटेड कुछ प्रैक्टिसेस कर रही है दैट इज़ हार्मफुल फॉर अस, तो वो WTO में जाके अपने डिस्प्यूट्स को
सेटल कर सकती है, वहाँ पे जाके केस फाइल कर सकती है. And the judgment by specially appointed independent expert, that means all the disputes will be settled by the appointed independent experts. कि कोई फेवरेटिज्म नहीं होता, इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स अपॉइंट किए जाते हैं उनके डिस्प्यूट को सेटलमेंट करने के लिए, जिससे भी रिलेटेड होगा. सपोज इट इज़ रिलेटेड टू ट्रेड इन सर्विसेज, देन एक्सपर्ट्स related to trade in services will be appointed, and they will help out to solve their disputes. So the third work is to settle the disputes. The fourth function is building the trade capacity in the world. Building the trade capacity in the world. In WTO, there is a special provision for developing countries. It means the WTO always prepare a special provision or prepare special agreements for developing countries so that their trade capacity can be increased. So the policy for developed country and developing countries is different. कि डेवलपिंग कंट्री के लिए अलग पॉलिसी होती है और डेवलप्ड कंट्री के लिए पॉलिसी अलग होती है. रिलेटेड उसी एरिया से होंगी, सर्विसेज से, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, या फिर गुड्स में है, टेक्सटाइल में है, डिस्प्यूट सेटलमेंट में है, बट दोनों के लिए जो पॉलिसी के रूल्स हैं दैट विल बी डिफरेंट. कि डेवलपिंग कंट्रीज़ को उसके इम्प्लीमेंटेशन, सपोज द WTO इज़ सेइंग दैट the countries, member country, should reduce their tariff. So there will be time period to reduce. Suppose WTO is giving 6 years to reduce the tariff, but there is a special provision for developing country that the developing countries is getting longer time period to implement these agreements. क्योंकि डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री के पास तो ऑब्वियसली कैपेसिटी है, पहले से ट्रेडिंग कैपेसिटी है, बट डेवलपिंग कंट्री के पास इतनी ट्रेडिंग कैपेसिटी नहीं है. सो द स्पेशल प्रोविज़न इज मेड फॉर डेवलपिंग कंट्री, दैट इज़ गिविंग द लॉन्गर टाइम पीरियड टू इम्प्लीमेंट दीज एग्रीमेंट्स. कि जो एग्रीमेंट्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करने, क्योंकि डेवलपिंग कंट्री के पास चैलेंजेस बहुत होते हैं कि एकदम से कोई भी चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती वहाँ पे, तो इसीलिए उनको ज़्यादा टाइम दिया जाता है. Special measures are also provided to increase their trading opportunities and support to help them to build their trade capacity. कि उनको और चीज़ों में सपोर्ट करते, टेक्निकल एक्सपर्ट्स प्रोवाइड करके, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करके, एंड अदर एक्सपर्टीज़ प्रोवाइड करके, एडवाइस प्रोवाइड करके, ताकि उनकी ट्रेडिंग कैपेसिटी एनहांस हो सके. So WTO also organized the hundreds of technical cooperation. Like the WTO also says the developed countries should provide technical cooperation to developing countries annually. And it also holds numerous courses each year in Geneva for government officials. That means developing countries can, the officers and ministers of the country can go to Geneva, and जैसे हम करते हैं कि हमें अपनी कैपेसिटी बिल्डअप करनी है, हमें अपने स्किल्स को बढ़ानी है, तो हमें क्या करना पड़ता है, कुछ नई चीज़ें सीखनी पड़ती है. तो ऐसे ही WTO भी न्यूमरस कोर्सेज ऑफर करती है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए, मिनिस्टर्स के लिए, ताकि वो कुछ नया रिफ्रेश सीख के आए, कुछ अच्छा सीख के जो अभी न्यू है, ताकि वो उसको जाके अपनी कंट्री में इम्प्लीमेंट कर सके, यूज़ कर सके और अपनी ट्रेडिंग कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर सके. सो एड इज़ ऑल्सो प्रोवाइडेड टू डेवलपिंग कंट्रीज़ की हेल्प इन फॉर्म ऑफ मॉनेटरी फॉर्म में भी हेल्प प्रोवाइड करती है टू डेवलप देयर स्किल्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. कि उन डेवलपिंग कंट्री को अपनी अगर स्किल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, देन WTO also provides the aid to the member countries. So these building trade capacity means WTO helps
to build the trade capacity of the developing nations especially. And there is also outreach programs of the WTO. WTO also performs or functions to provide outreach programs. That means outreach apart from WTO ministerials and secretariat level, it also maintains a regular dialogue with the NGOs, parliamentary officials, international or other international organization, and the media and general public. It also takes the feedback from the media and general public. So it is not limited, or it doesn't limit itself to only member countries or to WTO itself, कि खुद अपने आप में ही उसने अपने आप को लिमिट करके नहीं रखा हुआ है, अदर से भी अपना रिलेशन मेंटेन करके रखा हुआ है. बाहर के जो NGOs हैं, पार्लियामेंट्री ऑफिशियल्स, मिनिस्टर्स हैं, अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, सपोज यूनाइटेड नेशन है, या फिर अदर प्रोग्राम्स है, या अदर बैंकिंग सिस्टम है, IMF इज़ देयर, वर्ल्ड बैंक इज़ देयर. सो सभी से उसका डायलॉग, रेगुलर डायलॉग रहता है, क्योंकि एक में चेंज होता है तो दूसरे पे भी इम्पैक्ट आता है. प्लस इट ऑल्सो टेक्स फीडबैक फ्रॉम द मीडिया एंड जनरल पब्लिक. And the main aim of outreach is to enhance the cooperation and increase the awareness of the WTO activities. कि cooperation enhance करना among the various organization and to increase the awareness about their programs, कि WTO क्या करती है, उनकी क्या activities है, उसकी awareness भी increase करना. So this is the outreach function the WTO performs. Now we are going to look at the principles at which WTO stands. That means what are the objective of WTO, what are the principles of WTO at which WTO work, कि कौन से ऐसे principles हैं जिस पे WTO काम करती है. So first principle is non-discrimination. The country should not discriminate between its trading partner. It means कि कोई भी member country आपस में एक दूसरे के साथ भेदभाव नहीं करेगी. Plus it should not discriminate between its own and foreign product. कि ना तो वो अपने प्रोडक्ट में और फॉरेन प्रोडक्ट में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा. प्लस अपने पर्सन और दूसरी की सर्विसेज, अपनी सर्विस और दूसरे की सर्विस में भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. सो द फर्स्ट प्रिंसिपल इज नॉन डिस्क्रिमिनेशन. सेकेंड प्रिंसिपल मीन्स मोर ओपन. It is a major principle that WTO stands for, that is more open. More open means there should be less barriers in international trade. International trade में कम से कम trade barriers, so that means there should be less tariff or custom duty, there should be less quotas, and जो restrictive quantity था कि हमें पहले होता था कोटा लगा दिया जाता था या रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता था क्वांटिटी को, कि इस कंट्री से हम इतनी क्वांटिटी इंपोर्ट करेंगे, या कस्टम ड्यूटी लगा दी जाती थी, तो उन सबको लोअर करना, मिनिमाइज़ करना, तो ट्रेड बैरियर्स को ख़त्म करना और इंटरनेशनल ट्रेड को ओपन करना. दैट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ WTO. प्रिडिक्टेबल एंड ट्रांसपेरेंट, द थर्ड प्रिंसिपल ऑफ WTO. दैट मीन्स द फॉरेन कंपनीज, investors and government should be confident that trade barriers should not be raised arbitrarily. कि हम WTO को दिखाने के लिए तो ट्रेड बैरियर्स हटा रहे हैं, लेकिन छुपा के या कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो कि ट्रांसपेरेंट नहीं है. कोई भी इन्वेस्टर या फॉरेन कंपनी है या गवर्नमेंट है तो वो ऐसा ना करें. एंड देयर शुड बी स्टेबिलिटी इन द मार्केट, so that investment should be
इंक्रीज्ड एंड जॉब शुड बी क्रिएटेड, की स्टेबिलिटी होनी चाहिए मार्केट में ताकि इन्वेस्टमेंट बढ़े और एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो. मोर कॉम्पिटिटिव, it provides a more competitive platform. That means its principle is to discourage the unfair practices, कि जो export import से related जो unfair practices है, mainly dumping activities, that should be abolished from the market so that the international trade is fair, कि unfair trade को ख़त्म करना, कि डंपिंग को ना यूज़ करे, एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ ना प्रोवाइड करे, ताकि क्योंकि सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं तो उनकी कॉस्ट कम हो जाती है तो सस्ते में बेच सकते हैं दूसरी कंट्री में जाके. तो उन सब चीज़ों को ख़त्म करना ताकि कॉम्पिटिटिवनेस बढ़े, हेल्दी कंपटीशन बढ़े, ना कि अनफेयर कंपटीशन. द नेक्स्ट प्रिंसिपल is more beneficial for less developed countries. The WTO also provides more time to adjust and more time to implement their agreements to less developed country. डेवलपिंग के लिए तो था ही कम, डेवलप्ड से कम टाइम मिला था, बट ज़्यादा टाइम मिला था. बट जो लेस LDCs हैं, लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, डेवलपिंग से भी नीचे हैं, जो उनको और ज़्यादा टाइम दिया जाता है कि अपने आप को एडजस्ट करें और अपनी एग्रीमेंट्स जो है उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए और ज़्यादा टाइम दिया जाता है, ताकि वो उनको स्पेशल प्रिविलेज दिया जाता है कि ताकि वो प्रॉपर तरीके से डेवलप हो सके. एंड नेक्स्ट प्रिंसिपल इज़ प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट. कि WTO एग्रीमेंट के अंदर जो प्रिंसिपल है WTO जिस पे वर्क करता है इज़ WTO ऑल्सो टेक्स द मेजर टू प्रोटेक्ट not only environment but also the public health, animal health and plant health. कि ओवरऑल environment को प्रोटेक्ट करना, कि उनकी पॉलिसी ऐसी हो, एग्रीमेंट ऐसे हो जो हमारी environment को प्रोटेक्ट करे. So these are the principles of WTO at which WTO stands. Now we are coming to the next or the last part of WTO, that is related to agreement. So agreement, WTO agreement has many aspects and it covers lot of areas. First is agreement related to goods. Second is in services. Third is intellectual property rights. Fourth is the dispute settlement body. Then trade policy review. And one thing that is included in the Doha round of WTO in 2001, that is plurilateral agreement. Plurilateral agreement is not concluded yet. That means these agreements are only adopted by some nation, some member nation, and it is not adopted by all the member countries. So plurilateral services agreements are related to civil aircraft, government procurement service, dairy product and meat. So plurilateral comes in 2001. Trade in goods deals with the agriculture sector, goods in agriculture sector, textile, anti-dumping, and it is also related to safety. There is trims, and the agriculture sector, the issues are related to subsidies, that is green box, blue box, amber box. TRIPS means trade related and intellectual property rights. TRIMS, trade related investment policy review,
की पॉलिसी रिव्यू करना है, प्लूरिलेटरल की जो कि अभी तक पूरी मेंबर कंट्री ने अभी तक साइन नहीं किया है। सो अब वन बाय वन इन एग्रीमेंट को देखते हैं। फर्स्ट देखते हैं ट्रेड रिलेटेड गुड्स में जो फर्स्ट जो हमारा आता है मेजर जो एग्रीमेंट है जो अभी तक कॉन्फ्लिक्टिंग रहा है वो है हमारा एग्रीकल्चर एग्रीमेंट। एग्रीकल्चर एग्रीमेंट 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था, मार्केट एक्सेस, डोमेस्टिक सपोर्ट और एक्सपोर्ट सब्सिडीज। WTO ने इन एग्रीकल्चर के एग्रीमेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जो फर्स्ट पार्ट है मार्केट एक्सेस, दैट मीन्स वेरियस ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस कन्फ्रंटिंग इंपोर्ट्स। कि एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या होता है कि जो मेनली डेवलपिंग कंट्रीज़ क्या करती हैं, जिन कंट्रीज़ का एग्रीकल्चर डेवलप्ड होता है या फिर जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है जहाँ पे मेनली एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है, तो वो ट्रेड पे रिस्ट्रिक्शन, एग्रीकल्चर सेक्टर की जो गुड्स है उनकी ट्रेड पे बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाती है इंपोर्ट को लेके। उससे क्या होता है कि इंटरनेशनल ट्रेड में जो है वो नुकसान होता है, तो मार्केट एक्सेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। दैट्स वाई मार्केट एक्सेस नाम दिया है कि अगर गुड्स की ट्रेड पे रिस्ट्रिक्शंस लगेंगी, इंपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शन लगेंगी, सपोज़ कि अमेरिका जो है वो इंपोर्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की गुड्स पे रिस्ट्रिक्शन लगा रही है, तो अमेरिका की जो मार्केट है उसको एक्सेस नहीं कर पाएगी दूसरी कंट्री की मार्केट। क्योंकि अगर इंडिया एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भेजना चाह रही है अमेरिका और अमेरिका बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा रही है इंपोर्ट पे, तो क्या होगा, इंडिया मार्केट एक्सेस नहीं कर पाएगी वहाँ पे। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में WTO का कहना था कि इन रिस्ट्रिक्शंस को मिनिमाइज़ करना, ताकि जो एक दूसरी मेंबर कंट्री क्या एक दूसरे की कंट्री में जाके मार्केट एक्सेस कर पाए और सपोर्ट अपना ट्रेड इजीली कर पाए। क्योंकि कुछ कंट्री के पास एग्रीकल्चर सेक्टर के प्रोडक्ट ज़्यादा होते हैं एक्सपोर्ट करने के लिए, तो उनके लिए हार्मफुल हो जाता है। सेकंड, डोमेस्टिक सपोर्ट, कि जो डोमेस्टिक गवर्नमेंट है, सपोज इंडिया है, तो वो अपनी एग्रीकल्चर सेक्टर को क्या सपोर्ट प्रोवाइड करती है। जैसे डोमेस्टिक सपोर्ट में मेनली आ जाता है यहाँ पे कि सब्सिडीज़ जो प्रोवाइड किए जाते हैं फर्टिलाइज़र पे या फिर मशीनरी टूल्स पे, सीड्स पे, या फिर जो इंश्योरेंस प्रोवाइड किए जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें डोमेस्टिक सपोर्ट है। या फिर जो MSP प्रोवाइड किया जाता है, तो इस डोमेस्टिक सपोर्ट को भी मिनिमाइज़ करना, क्योंकि जब भी सब्सिडी प्रोवाइड किया तो वो गुड्स क्या है सस्ते में बेच सकता है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन डाउन हो गई है अब उसकी। तो WTO जो है वो ये कहती है कि जो डोमेस्टिक सपोर्ट है उसको डिक्लाइन किया जाए। एंड थर्ड वाज रिलेटेड टू एक्सपोर्ट सब्सिडी। एक्सपोर्ट सब्सिडी की मान लो कि एक फॉर्म है, उसे एक्सपोर्ट करना है एग्रीकल्चर सेक्टर की गुड्स को, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसको भी सब्सिडी प्रोवाइड करती है, ताकि वो दूसरे के मार्केट में जाके, दूसरी कंट्री की मार्केट में जाके वो इजीली कम प्राइस पे सेल कर पाए। That is related to 3 aspects: market access, domestic support and export subsidies. So अब इसको लेके WTO ने एक्चुअली क्या एग्रीमेंट्स बनाए हैं, तो इन तीनों से रिलेटेड कि टैरिफ कितना कट होना चाहिए, एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ कितना मिनिमाइज होना चाहिए और डोमेस्टिक सपोर्ट कितना मिलना चाहिए फार्मिंग सेक्टर को। सो 2 टाइप की कैटेगरी है कंट्रीज़ के लिए, डेवलप्ड नेशन के लिए अलग है और डेवलपिंग नेशन। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि डेवलपिंग नेशन को ज़्यादा टाइम दिया जाता है और डेवलप्ड नेशन को कम टाइम दिया जाता है टैरिफ रिड्यूस करने के लिए। सो फर्स्ट इज टैरिफ रिडक्शन
of all type of agriculture products. That means the tariff should be reduced on the import of agriculture product. तो डेवलप्ड नेशन के लिए दिया है कि 36% उन्हें अपना टैरिफ रिड्यूस करना है इन 6 ईयर, बट डेवलपिंग नेशन को इन द 10 ईयर 24% ही टैरिफ रिड्यूस करना है फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट. एंड मिनिमम, ये एवरेज कट है एंड एक मिनिमम कट की मिनिमम 15% तो होना ही चाहिए. इफ़ दे फेल टू रिड्यूस द 36% देन मिनिमम 15% शुड बी रिड्यूस्ड विद इन 6 ईयर. एंड फॉर डेवलपिंग नेशन minimum 10% should be reduced in 10 year. So this is the tariff reduction on import of agriculture product. Second, the domestic support. की domestic support जो मिलता है unnecessarily, तो उसको कितना reduce करना चाहिए domestic support को. So domestic support should be reduced by 20% in 6 year and 13% for the developing nation in 10 year. So इतना reduce हो जाना चाहिए for 6 year in developed nation and for 10 within 10 year in developing nation. एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ जो फॉर्म्स को दिया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू, वो कितना रिडक्शन होना चाहिए. दैट इज़ इन 2 कैटेगरी, वैल्यू ऑफ सब्सिडीज़ के बेस पे और सब्सिडाइज्ड क्वांटिटीज़ के बेस पे. कितनी क्वांटिटी सब्सिडाइज्ड है हमारे पास फॉर्म्स के पास. सो 36% फॉर डेवलप्ड नेशन इन 6 ईयर एंड 24% फॉर डेवलपिंग नेशन इन 10 ईयर. सिमिलरली सब्सिडाइज्ड क्वांटिटी जो रिड्यूस करनी है, दैट इज़ 21% फॉर डेवलप्ड नेशन. सब्सिडाइज्ड क्वांटिटी should be reduced by 21% in 6 year, and in developing nation subsidized quantity should be reduced by 14% in 10 years. So this is for the developed nation and developing nation. The policies is different for both type of countries, but if we are talking about, we will talk about least developed countries, that is underdeveloped and very underdeveloped countries. So they do not have make any commitment to reduce their tariff and subsidies. So least developed countries don't fall under the tariff reduction policy. So they do not need to make commitment to reduce their tariffs. This is only for the developed and developing nation. So this is all about the agriculture agreement under WTO. Next agreement is related to General Agreement on Trade in Services, GATS. Short form जो है इसका, that is GATT, GATS, General Agreement on Trade in Services. 4 मोड प्रिपेयर किए गए हैं ट्रेड जो सर्विसेज में होते हैं उसके लिए. फर्स्ट मोड इज़ क्रॉस बॉर्डर सप्लाई, सेकेंड मोड कंजम्पशन अब्रॉड, and third mode commercial presence, and fourth mode is the presence of natural person. So cross border supply के क्या क्राइटेरिया हैं? 2 क्राइटेरिया, क्रॉस बॉर्डर सप्लाई और कंजम्पशन अब्रॉड के जो सप्लायर हैं, सर्विस सप्लायर नॉट प्रेजेंट विद इन द टेरिटरी ऑफ अ मेंबर कंट्री. जब सर्विस सप्लायर जो है वो कंट्री में नहीं रह रहा है, उसकी प्रेजेंस नहीं है, तो उसके लिए जो क्राइटेरिया है क्रॉस बॉर्डर सप्लाई का क्राइटेरिया है सर्विस डिलीवर्ड विद इन द टेरिटरी ऑफ मेंबर फ्रॉम द टेरिटरी ऑफ अनदर मेंबर. कि दूसरे मेंबर कंट्री से किसी अदर मेंबर कंट्री में जब सर्विस डिलीवर किया जा सकता है उसकी टेरिटरी में जाके. कंजम्पशन अब्रॉड सेज सर्विस डिलीवर्ड आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ मेंबर. कि जब सर्विस हमारी मेंबर कंट्री के टेरिटरी के बाहर डिलीवर किया जाता है इन द टेरिटरी ऑफ अनदर मेंबर, दूसरे कंट्री के अंदर जाके हमारी कंट्री से बाहर. सो जब हम जैसे हम कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं यूएस को,
हमारी कंट्री के टेरिटरी, सपोज करो कि यहाँ पे हम कोई सर्विस नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं बट दूसरी कंट्री में जाके सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। जो क्रॉस बॉर्डर था वो था कि हमारी कंट्री में आके सर्विस प्रोवाइड कर रहा है फ्रॉम द अदर नेशन। कमर्शियल प्रेजेंस, द सर्विस डिलीवर्ड विद इन द टेरिटरी ऑफ अ मेंबर थ्रू कमर्शियल प्रेजेंस। यहाँ पे क्या था कि प्रेजेंस नहीं थी सप्लायर की, सर्विस सप्लायर इज़ नॉट प्रेजेंट। यहाँ पे सर्विस सप्लायर प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, सर्विस सप्लायर प्रेजेंट होता है विद इन द टेरिटरी ऑफ मेंबर कंट्रीज। तो सर्विस विद इन द टेरिटरी ऑफ मेंबर थ्रू द कमर्शियल प्रेजेंस, कि जब हम किसी मेंबर कंट्री में सर्विस प्रोवाइड करते हैं। एंड लास्ट, प्रेजेंस ऑफ नेचुरल पर्सन, कि उसकी प्रेजेंस है एज अ नेचुरल पर्सन, एज अ पर्सन उसकी प्रेजेंस है। तो तब जब वो दूसरी कंट्री, मेंबर कंट्री में जाकर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और वहीं पे वो उसकी प्रेजेंस है, वहाँ पे वो रह रहा है, वहाँ पे रह के वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है अपने फॉर्म के थ्रू, दैट इज़ कॉल्ड द प्रेजेंस ऑफ नेचुरल पर्सन। तो ये था हमारा जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज, जो कि 4 मोड में डिफाइन किए गए हैं। क्रॉस बॉर्डर सप्लाई, कंजम्पशन अब्रॉड, इन दोनों में सर्विस सप्लायर प्रेजेंट नहीं होता है और इन दोनों में सर्विस सप्लायर प्रेजेंट होता है, कमर्शियल प्रेजेंस एंड प्रेजेंस ऑफ नेचुरल पर्सन में। थर्ड जो एग्रीमेंट है दैट इज़ रिलेटेड टू ट्रिप्स। ट्रिप्स मीन्स ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हमारा 7 कैटेगरी में डिफाइन किया जाता है। जो ट्रिप्स है वो पहले गैट के अंदर नहीं आता था, ट्रेड रिलेटेड गुड्स ही आते थे। तो ट्रिप्स जो है दैट ट्रिप्स इंट्रोड्यूस क्यों किया गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो हैं वो क्यों इंट्रोड्यूस किए गए। कई बार क्या होता है कि दूसरी कंट्री एक दूसरे की टेक्नोलॉजी एंड एक दूसरे की चीज़ों को कॉपी करके और फिर वो अनफेयर मीन्स के थ्रू वो अपना बना लेते हैं कि नहीं ये हमने इंट्रोड्यूस किया, ये हमारी कंट्री का है। सो उस अनफेयर प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए, एक मिनिमम स्टैंडर्ड सेट करने के लिए डिफरेंट टाइप्स के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस किए गए WTO के थ्रू। सो गैट राउंड में ही ये 1994 में ही इंट्रोड्यूस किया गया था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। एंड 7 टाइप्स की होती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, जियोग्राफिकल इंडिकेटर, इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस, इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिज़ाइन एंड ट्रेड सीक्रेट्स। सो ये सारे जो कॉपीराइट्स हैं, ट्रिप्स प्रॉपर्टी राइट्स हैं, ये दिए जाते हैं ताकि कोई कंट्री या कोई भी इंडस्ट्री एक दूसरे की अनफेयर मीन्स के थ्रू कोई चीज़ कॉपी ना कर सके, कोई चीज़ अपने नाम पे ना कर सके। कॉपीराइट्स दैट इज़ रिलेटेड टू लिटरेरी आइटम्स, म्यूज़िकल आइटम्स की उसके लिए होता है। मिनिमम 10 to 15 ईयर्स के लिए दिया जाता है ये। अगर ये किसी ने सपोज़ करो मैंने कोई अपने लिटरेरी आइटम्स का कॉपीराइट करवा रखा है तो वो कोई और उसको इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता है। पेटेंट टेक्निकल चीज़ों से रिलेटेड है, टेक्निकल चीज़ों को पेटेंट करवाते हैं। ट्रेडमार्क, कोई भी कंपनी अपनी ट्रेडिंग कंपनी है तो वो अपना ट्रेडमार्क ले सकता है। ज्योग्राफिकल इंडिकेटर इंडिकेट करता है कि ये प्रोडक्ट जो है, ये चीज़ है, वो कौन से ज्योग्राफिकल एरिया से आता है। जैसे कश्मीरी शॉल है तो वो कश्मीर का है, उसकी ज्योग्राफी कश्मीरी है, वो कश्मीर से रिलेटेड है, तो एरिया वाइज डिफ़र करता है। इंडस्ट्रियल डिज़ाइन कोई अपना ले सकता है, उसको भी कोई कॉपी नहीं कर सकता है। ट्रेड सीक्रेट्स हैं, लेआउट डिज़ाइंस हैं, तो ये सारे एक मिनिमम स्टैंडर्ड सेट करते हैं जो कि इंडस्ट्रीज़ को और मेंबर कंट्रीज़ के जो इनोवेशन एंड इन्वेंशंस की हुई चीज़ों है उनको वो प्रोटेक्ट करती है, दूसरे को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रोडक्ट्स को, टेक्नोलॉजी को, अदर चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि कोई और उसको कॉपी ना कर सके। सो ये गैट के 1994 में जो राउंड हुआ था, लास्ट राउंड जो था, उसी में इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट इज़
द जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स की इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड क्या मेजर्स अडॉप्ट किए गए WTO के थ्रू, ट्रिम्स, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया दैट सर्टेन द इन्वेस्टमेंट मेजर्स कैन रिस्ट्रिक्ट एंड डिसॉर्ट की अगर कोई कंट्री अपने अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अगर कोई डिसीजन ले रहा है कि अपने बेनिफिट के लिए और दूसरी कंट्री को ध्यान में नहीं रख रहा है, तो दैट कैन हार्म द इंटरनेशनल ट्रेड। कि मैं अपने बेनिफिट के लिए, इंडिया तो अपने लिए तो इन्वेस्टमेंट मेजर्स ऐसे ले रही है जो उसको बेनिफिट करे, ना कि दूसरी कंट्री को, तो वो इंटरनेशनल ट्रेड को नुकसान पहुंचाती है। तो इसीलिए ट्रिम्स को इंट्रोड्यूस किया गया। तो WTO इसके लिए एक्चुअली इन्वेस्टमेंट को लेके कहती है, इट स्टेट्स दैट WTO member may not apply any measure that discriminate against the foreign product. It means any country under the WTO member cannot adopt any type of measure that will harm the foreign product and that leads to quantitative restrictions and violate the WTO principles। क्योंकि ये दोनों ही, अगर हम फॉरेन प्रोडक्ट्स को डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं या फिर क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं, तो वो WTO के प्रिंसिपल्स को वायलेट करती है। तो ऐसा कोई भी मेजर अडॉप्ट नहीं कर सकता कोई भी मेंबर कंट्री जो कि उसके दूसरे के प्रोडक्ट को डिस्क्रिमिनेट करती है या फिर कोई क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस लगा रही है। And a list of prohibited trims such as local content requirements is a part of the agreement। local content requirement जो है इसका पार्ट आता है। जैसे अगर कोई केस देखे, इवन कोई पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लेके भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता कोई भी कंट्री। हाँ, लिमिटेशन सेट कर सकता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीडम दे हर कंट्री पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट FIIs को और FDIs को, ना कि उसको डिस्क्रिमिनेट करे कि हम इस कंट्री का तो आने देंगे इन्वेस्टमेंट, दूसरी कंट्री का नहीं आने देंगे अगर वो WTO का मेंबर है तो ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। रिसेंटली अगर देखें तो US ने केस कर दिया था इंडिया पे डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट को लेके, सोलर एनर्जी और उसके इक्विपमेंट को जो प्रोक्योर कर रही है, तो उसको लेके WTO जो है ट्रिम्स से रिलेटेड जो है वो उसको WTO के अंडर केस कर चुकी है इंडिया के ऊपर। नेक्स्ट पार्ट ऑफ एग्रीमेंट इज़ द डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। कि अगर कोई डिस्प्यूट होता है मेंबर कंट्रीज़ के बीच में related to all these agreement or foreign trades, international trade से related, so they can deal and they can take their disputes in WTO. So all the disputes can be settled by WTO through the dispute settlement body. Dispute settlement, any disputes may arise, वो कोई भी चीज़ से रिलेटेड हो, चाहे वो ट्रेड से, ट्रेड इन गुड से हो, ट्रेड इन सर्विसेज से हो, चाहे वो जैसे अभी देखा US ने इंडिया को ड्रैग कर दिया उस WTO के अंदर कि जो हमारा जो ट्रिम से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, तो ये WTO में DSB के अंडर डिस्प्यूट्स कैसे सेटल होते हैं। फर्स्ट कि डिस्प्यूट सेटलमेंट पैनल इस्टेब्लिश किया जाता है, उसके अंदर मैटर रेफर किया जाता है कि कैसे आर्बिट्ररी मेथड्स यूज़ किया है कंट्रीज़ ने। पैनल जो है वो एपिलेट बॉडी बनाती है और आर्बिट्रेशन रिपोर्ट्स जो है वो मेंटेन करती है। उसके बाद स्क्रूटिनी होती है और ये देखती है कि जो रिपोर्ट्स बनी है एक्चुअली में, जो फाइल किया गया है केस, एक्चुअली में क्या वो सही है, क्या वो सही है या नहीं है। उसके बाद अगर कोई कंट्री ऐसा देखा जाता है कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस WTO के थे वो फॉलो नहीं किए हैं, तो उनके ऊपर सस्पेंशन भी लग सकता है, उनके ऊपर कोई और टाइप के मेजर्स, कोई और टाइप के पनिशमेंट
लग सकती है। तो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी जो है पैनल, डिस्प्यूट सेटलमेंट पैनल क्रिएट करके एपिलिएट बॉडी होती है उसके अंदर, तो वो स्क्रूटनी करती है और टाइम टू टाइम स्क्रूटनी इसीलिए होती रहती है ताकि कंट्रीज़ के बीच में डिस्प्यूट्स ना हो। उनकी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की जो स्क्रूटनी होती है वो इसलिए भी होती है ताकि डिस्प्यूट्स अराइज ना हो, क्योंकि किसी और कंट्री को हो सकता है कि हमारी कंट्री के फॉरेन ट्रेड पॉलिसी से प्रॉब्लम हो। दैट्स वाई WTO ऑलवेज मॉनिटर द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऑफ द कंट्रीज़। तो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी के अंदर कोई भी कंट्री, मेंबर कंट्री, अपने डिस्प्यूट्स जो है ट्रेड रिलेटेड डिस्प्यूट्स सेटल कर सकती है। द ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी, TPRB, ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी एक्चुअली established to review the trade policies of the member countries। इसके अंदर मेनली होता क्या है, ऑडिटिंग, इंस्पेक्शन एंड रिव्यूज़ ऑफ द ट्रेड पॉलिसी ऑफ द मेंबर नेशंस। जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं उनकी जो ट्रेड पॉलिसी है, डोमेस्टिक ट्रेड पॉलिसी एंड इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी, वो रिव्यू की जाती है, इंस्पेक्ट की जाती है, ऑडिटिंग की जाती है, ताकि वो ये देखती है कि क्या WTO ने जो भी पॉलिसी सेट किया है, एग्रीमेंट सेट किया है मेंबर नेशन ने, क्या वो एक्चुअली में इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और उनसे इन मेंबर कंट्री से फिर फीडबैक भी लेती है। दैट इज़ डन ड्यू टू इंक्रीज़ इन द ट्रांसपेरेंसी, की ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज़ हो, कंट्री की जो ट्रेड पॉलिसी है वो ट्रांसपेरेंट हो, कोई अनफेयर प्रैक्टिस ना हो। रेगुलर मॉनिटरिंग के थ्रू ट्रेड पॉलिसी रेगुलर मॉनिटर की जाती है ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे। टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ पब्लिक एंड इंटर गवर्नमेंटल डिबेट, क्योंकि जब हम मॉनिटर करते हैं, इंस्पेक्ट करने जाते हैं, तो एक दूसरे के मेंबर नेशन के बीच में इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल डिबेट भी अराइज होती है, जो कि एक पॉजिटिव फीडबैक होता है पॉलिसी के लिए। एंड टू एनेबल द मल्टीलेटरल असेसमेंट ऑफ द इफ़ेक्ट ऑफ द पॉलिसी, कि एक कंट्री अगर पॉलिसी बना रही है इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड तो उसका इफ़ेक्ट क्या आएगा। अगर WTO मॉनिटर नहीं करती है, हो सकता है कोई कंट्री ऐसे पॉलिसी बना ले जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाए दूसरी कंट्रीज़ पे। सपोज़ कि चाइना ने कोई ऐसी पॉलिसी अडॉप्ट की जिससे कि दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाए, तो ये चीज़ असेस करने के लिए कि पॉलिसी कितना बेनिफिशियल है, कितना हार्मफुल है, तो इस चीज़ के लिए मॉनिटर किया जाता है। प्लस कोई अनफेयर प्रैक्टिस ना हो, ट्रांसपेरेंट हो पॉलिसी। दैट्स वाई द TPRB was set up to monitor the trade policies of the member nation. The last agreement under the WTO is plurilateral agreement. Plurilateral treaty is a treaty between limited number of states with particular interest in the subject of the treaty. ये जो प्लूरिलेटरल नाम दिया गया, ये इसलिए दिया गया क्योंकि इसमें ज़रूरी नहीं है कि सभी कंट्रीज़ जो है वो इन्वॉल्व हो। कुछ कंट्री जिनका सिमिलर इंटरेस्ट है, सपोज़ सिविल एविएशन में है, तो सिविल एविएशन को लेके हर मेंबर कंट्री जो है वो हो सकता है कि हर एक मेंबर कंट्री उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहता हो, क्योंकि उनका इंटरेस्ट उस चीज़ से रिलेटेड नहीं है। तो जिनका सिमिलर इंटरेस्ट है, जिन नेशन का, जिन मेंबर नेशन का एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट के ऊपर, वो सपोज़ कि WTO में जो मेंबर है उसमें से 15 कंट्री हैं जिनका सिविल एविएशन को लेके एक एग्रीमेंट करना चाहते हैं, तो वो एक ट्रीटी के अंदर, प्लूरिलेटरल ट्रीटी के अंदर अपना एग्रीमेंट कर सकते हैं। तो जो ये कंपलसरी नहीं है कि जैसे ट्रिप्स आई या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आई, ये ट्रेड इन गुड्स है, तो ये सारी चीज़ें जो है हर एक कंट्री पर अप्लाई थी, लेकिन प्लूरिलेटरल एग्रीमेंट इज़ नॉट अप्लाइड येट टू ऑल द कंट्रीज, ऑल द मेंबर नेशन। सो प्लूरिलेटरल ट्रीटी जो है मेनली 4 एरियाज़ को कवर करती है: सिविल एयरक्राफ्ट, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट, डेयरी प्रोडक्ट एंड बोवाइन मीट। तो ये 4 सेक्टर को लेके ये एग्रीमेंट है, और ये सभी ने अभी तक साइन नहीं किया गया है, मे बी। और ये जो प्लूरिलेटरल एग्रीमेंट है दैट कम्स आफ्टर द टोक्यो राउंड इन 2001। टोक्यो राउंड के बाद आया है।
तो ये जो एग्रीमेंट्स हैं, ये एग्रीमेंट कुछ ही मेंबर नेशन ने अभी तक साइन किए गए। हो सकता है कि वो इन फ्यूचर जाके मल्टीलेटरल एग्रीमेंट में कन्वर्ट हो जाए, बट अभी तक ये प्लूरीलेटरल ही है और कुछ कंट्रीज़ ने ही अभी तक साइन किया है। ये पहले इंट्रोड्यूस तो किया गया था उरुग्वे राउंड में, बट एक्चुअली में किसी ने साइन नहीं किया था, नेगोशिएट हो नहीं पाया था। तो इसको फिर से टोक्यो राउंड के अंदर 2001 में इंट्रोड्यूस किया गया और कुछ मेंबर नेशन ने इन पे साइन किए हैं। तो ये कुछ मेंबर नेशन के लिए ही अप्लाइड है, नॉट टू ऑल मेंबर कंट्रीज़। सो जितने भी इसके एग्रीमेंट्स हैं कि क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं, तो इससे रिलेटेड आप जाके WTO की वेबसाइट से रीड आउट कर सकते हैं। तो जितने भी एग्रीमेंट्स हैं उससे रिलेटेड अगर मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए, इफ़ यू वांट मोर इन्फॉर्मेशन ऑन दीज एग्रीमेंट्स लाइक सिविल एयरक्राफ्ट में क्या एग्रीमेंट साइन हुए हैं, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट में या डेयरी प्रोडक्ट में, मीट में, सो दीज कैन बी डन ऑन द WTO ओरिजिनल वेबसाइट। जो एक्चुअली में जो उनकी वेबसाइट है WTO.org, उस पर जाके आप सर्च कर सकते हो। और एक और है कि जितने भी आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जब हम पढ़ते हैं तो वो सारी उनकी अपनी खुद की वेबसाइट है, तो डेटा मिसलीडिंग ना हो, क्योंकि डिफरेंट टाइप के हमारे पास साइट्स हैं। तो ऑथेंटिसिटी जिसकी ज़्यादा हो, और ऑथेंटिसिटी इनकी जो अपनी खुद की वेबसाइट है उस पर ज़्यादा होती है, तो इनके खुद की वेबसाइट पे जाके, जो इनके अपनी वेबसाइट है उन पे जाके रीड आउट कर सकते हो जितनी भी चीज़ें हैं। अगर कोई और डेटा इसके अलावा और चाहिए तो रीड आउट कर सकते हो। अदरवाइज दीज आर ऑल अबाउट द इंटरनेशनल ट्रेड एंड WTO की कैसे मल्टीलैटरल ट्रेड स्टार्ट हुआ, गैट के राउंड्स क्या थे, किससे रिलेटेड था। गैट वाज ओनली रिलेटेड टू ट्रेड इन गुड्स। Then in 1994 WTO came into effect, and there are multiple aspects like trade in goods, trade in services, intellectual property right, plurilateral agreement, dispute settlement body, trade policy review mechanism, and what are the principles of WTO and what they work, कि क्या वो काम क्या करते हैं, functions क्या हैं. So this is all about the WTO and its agreements. So you can, if you want more information, then you can go to WTO website and read their information and data on their website. So thank you so much.